नहीं, education is the foundation of our nation society. मैंने आराम से लगा के आया होता फिर तो बड़ा रास्ता। इस एक साल में, this last year will be a very important part of your life. 27 people, 27 faculties, 27 approaches, 27 experiences. मतलब the richness which you have got, richness by everyone. It's not that any one person has given all these things. History is a subject of stories. You have a very good scope of narrating stories here, and I said to you in the first class, कि story with messages. आप कोई भी story उठाओ, कोई भी. You take any character. History is basically a game of subject of characters. किसी से आपको नफरत नहीं करनी, तीनों आंखें एक्टिवेट रखनी है. If you want to be the part of aristocracy, ऐसे घुट घुट के जीना है, कर दो, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं. You have all other options. But then there are examples, hundreds of examples. Hundreds. There are examples, and I told you the concept of left and right arm yesterday. That concept was very important. The day you understand this, that the core of every religion, is to transform the human being. But the thing which you have to achieve, the day you will start moving on the path of religion, I tell you it's a very challenging path, not tough. Religion is very challenging. Whether you follow, it's a path, they all are paths. Hinduism is a path, Buddhism is a path, Islam is a path. They are not religion, they are a path. They will tell you a particular direction. You should go in this way, you should go in that way. They are basically a path, and finally all the paths lead to the same destination. This happened with Akbar. Actually, when he became the emperor, 1556, Battle of Panipat, Second Battle of Panipat, when Hindu was defeated, he was just 14 years of age. His father has died at a very tender age. He was 14 years of age. 1556 to 1560, for 4 years, he was under the guidance of his mother, Hamida Banu Begum. And not only mother of, what you call, धाय को क्या बोलोगे इंग्लिश में? फॉस्टर मदर, अच्छा चलो मान लेते हैं. वो जो आदम खान था जिसको उसने फेंका था छत से बाहर, तो उसको 1556 to 1560 he was under the guidance of his mother and other women relatives, and that period was called as petticoat government. Women were very dominant. Petticoat government. 1560, when he takes the charge in his hand after the death of this man, Baram Khan, so the first revolt he faced was the revolt of Mirzas, his own family members. After the Mirzas, the second revolt was of Uzbeks. तो शुरुआत में मुसलमानों ने ही रिवोल्ट किया उसके समय में. And the people who supported him were Rajputs. 1560 he marries not Jodhabai, Harakabai. His wife's name was Harakabai, daughter of Raja Bharmal of Amir. So when he married Harakabai, और पहली बार हिंदू मुस्लिम की जो शादी हुई वो हिंदू ट्रेडिशन से भी हुई, इस्लामिक ट्रेडिशन से भी हुई. तो जैसे हिंदुओं में डोली विदा होती है, ऐसे हरकाबाई की डोली आई आगरा तक. तो जब डोली आई तो when the डोली रीच्ड आगरा फोर्ट में जैसे ये लोग एंटर हुए तो एक हाथी पागल हो गया. तो these Rajputs stood in front of that mad elephant. क्योंकि हिंदू संस्कृति में बहन का घर और बेटी का घर बहुत बड़ा माना जाता है, तो ये राजपूत उस पागल हाथी के सामने खड़े हो गए. दिस वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट इन अकबर्स लाइफ कि नहीं यार ऐसा तो नहीं है, हमारे दुश्मन बताए जाते हैं. फिर सेकंड इंसिडेंट मेरता, बैटल ऑफ मेरता 1561. मानसिंह फोर्सेस वर फाइट. मानसिंह हिमसेल्फ वाज फाइटिंग.
अगर आपको फिर उसे लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं है कि ये कौन बताता है राजपूत काफिर, सर एम्परर है वो भी हिंदुस्तान का। द सैलरी ऑफ हिज मनसबदार वाज 30,000 एट दैट टाइम। उसके जो मनसबदार थे वो 1570 में 30,000 सैलरी पाते थे। आज जो 30,000 सैलरी है ना वो थोड़ी सी अच्छी मानी जाती है। 1570 30,000 सैलरी वॉज इन मिलियंस। कितना रुपया रहा होगा। फिर उस आदमी ने लिबरल ऑर्डर्स पास किए। 1564 में उसने जजिया खत्म किया। उसने टॉप क्लास के जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे उनको बुलाया। इनिशियली उसने मौलाना को बुलाया, इस मौलाना को बुलाया, इसको बहुत मारा इसको बाद में। ये मौलाना था सर, नाम लिख के चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कह रहा हूं सर। इसकी चप्पल उठाता था बंदा। Used to pick up his slippers in the court and move in the court with the slippers in the hand. This was the respect of Akbar for this man Abdul Nabi. तो जब इस आदमी ने इबादत खाना एस्टैब्लिश किया 1575 में, if you heard about इबादत खाना, तो this man was invited in इबादत खाना. He was a मौलाना कि औरतों को बुर्के में रखो, औरतों को स्कूल नहीं जाना चाहिए. There were two factions of Muslim intellectuals. One was of the father of this man Abul Fazl, शेख मुबारक. एक तरफ शेख मुबारक है, दूसरी तरफ ये था. He was a hardliner. तो शेख मुबारक ने कहा यार इस्लाम ऐसा कुछ भी नहीं कहता, सब क्या नाटकबाजी वाली बातें कर रहे हो. इसने गाली देना शुरू कर दिया मां बहन की कोर्ट में. And when he heard this man abusing, the myth of his greatness was immediately shattered. किताब रटने से कुछ नहीं होता. कबीर ने कहा नहीं पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हुए. उसको पंडित को बाद मैंने हटा दिया, मैंने उसको कर दिया पोथी पढ़ जगमुआ आइए भयानक हुए. तो फिर अब्दुल नबी ने क्या किया? व्हाट अब्दुल नबी डिड, he issued a fatwa against him. 1576 crisis. He issued a fatwa against him. He appealed all the Muslims of Hindustan not to respect this person Akbar, because Akbar has become a kafir under the influence of his wife Haraka Bai. क्योंकि हराका बाई जब हनुमान चालीसा पढ़ती थी तो ये हाथ जोड़ के पीछे खड़ा होता था. It's not liberalism. सारे पांच एक है. आप बिल्कुल मस्जिद में आप नमाज ध्यान करना चाहते हैं, सामने मस्जिद पढ़ के आप मस्जिद में जाके ध्यान कर लीजिए. सामने मंदिर पढ़ गया आप मंदिर में जाके ध्यान कर लीजिए. सामने गुरुद्वारा पढ़ गया आप वहां जाके ध्यान कर लीजिए. अगर आपके मन में ये बातें कि सारी चीजें अलग हैं, यू आर डिफरेंट, सर मत करिए तैयारी सर, नहीं है आपके लिए. जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऊपर कंपटीशन कम होता जाएगा. जैसे जैसे नीचे आओगे, यही तो खेल है जिंदगी का. यू वांट टू बिकम एन आईएएस, एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर. कंपटीशन इज लेस. कंपटीशन कम है. यहाँ 2 लाख लोग हैं, यहाँ 200 होंगे, यहाँ 150 होंगे. 1 बिलियन 25 करोड़ में यहाँ 10 होंगे बस. कंपटीशन इज लेस व्हेन यू मूव इन दिस डायरेक्शन. बट चैलेंज इज मोर. चैलेंज कंपटीशन नहीं है सर, लोग कम होते जाएंगे, चैलेंज ज्यादा है. मेंटल स्टेबिलिटी, एक से एक खिलाड़ी मिलेंगे आपको. और अगर आपको बाबू होना है, यू वांट टू बी अ बाबू, यू वांट टू बी अ चपरासी, और आपको नीचे आना है, तो कंपटीशन इज मोर, चैलेंज इज लेस. एक सब मरे मरे लोग मिलेंगे यहां पे, शिवलिंग लटका के घूम रहे. भैया कुछ सुनो मत, नहीं हम मुसलमान के घर में खाना नहीं खाते. तो आप किसके घर में खाओगे? शैतान के घर में. अरे मुसलमान के घर में तो बड़ी नसीब से आदमी को खाना मिलता है. मुसलमान मतलब जिसका ईमान अच्छा है. तो मुसलमान लोग खाने में गाय का गोश्त मिला देते. तुम्हें नहीं पता है ना, मिला देते. जब उनको अपनी जन्नत की चिंता नहीं है, to cheat anyone is the biggest crime in this world. अगर उनको लगता है कि किसी को गाय का गोश्त खिला देंगे तो बंदा मुसलमान हो जाएगा, अगर इतनी सस्ती है इस्लाम, तो इस्लाम बहुत सस्ता हो गया. मुझे कल खिला दो गाय का गोश्त, अगर इस ईमान मिल जाए तो मैं तो कल खा लूं. पर सर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सर.
इतना आसान नहीं है सर। रिबॉक के जूते तो 200 रुपए में चांदनी चौक में भी मिलते हैं। रिबूक अगर इतना ही आसान होता ना सर रिलीजियस होना, तो दुनिया में इतनी मारामारी नहीं होती। इसलिए फ्रॉम द डे वन, पहले दिन से, when I entered in, and I have a very specific motive, agenda, what you can call. I don't have any agenda to come and teach here. वो तो पता ही चल गया होगा, ये सब तो एजेंडा है ही नहीं। मेरा एजेंडा है बगावत करने का, क्रांति, रेवोल्यूशन, और तुम ही लोग करोगे और कोई नहीं करेगा। And when I see you depressed, तो मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आती कि निकाल के पकड़ के डाल दे घुमा दे। कि कौन बोला आईएएस की तैयारी करने के लिए? तुम सोचो, एक साल में तुम्हारी सोच बदली है, दैट इज नॉट अचीवमेंट, दैट इज ऑल्सो अचीवमेंट। एक साल में तुम्हें इतना नॉलेज मिली है, दैट इज नॉट अचीवमेंट, दैट इज ऑल्सो अचीवमेंट। जो तुम आए थे एक साल पहले, नाउ व्हेन यू आर गोइंग आउट, यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन। यू कैन बी अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर। मेरी स्टूडेंट है मंजू सिंह गिलेर, अलीगढ़ से। उसके फादर राजवीर सिंह गिलेर कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर ऑलरेडी एमपी थे। तो जब कोचिंग खत्म हुई तो शी केम टू मी एंड सेड कि सर आईएएस नहीं देंगे। मैंने कहा फिर? बोले इलेक्शन लड़ेंगे सर। अरे मैंने क्या पढ़ा? बाजीराव सिर्फ आईएएस नहीं बनाता लोगों को, आईएएस हमारा एक विंग है। बहुत अच्छा सर, आप जाइए, आप आईएएस बन जाइए। आप बोले सर मैं तो अगला अंबानी बनूंगा, बहुत अच्छा। आप एंटरप्रेन्योर बन जाइए, बिजनेस करिए जबरदस्त, 1-8 लाख करोड़ रुपए कमाइए, अगला इलेक्शन मेरा फंड करिए।